آغاز میں کراچی کی ہی بات کریں تو پانی کراچی میں پھر بادل برسنے لگے۔ گلشن حدید، ملیر، کاٹھور، سٹیل ٹاؤن اور بھینس کالونی میں بارش جاری ہے۔ پانی کراچی میں پھر بادل برسنے لگے۔ گلشن حدید، ملیر، کاٹھور، سٹیل ٹاؤن اور بھینس کالونی میں بارش ہو رہی ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث نظام زندگی مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا ہے۔ شہر میں متعدد سڑکیں اور شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گھروں میں پانی گھس گیا، سامان بہہ گیا، مصیبت کے ماروں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سب سے زیادہ بارش فیصل بیس پر 223.5 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ سرجانی میں 193.1، کماڑی میں 167، نارتھ کراچی 166.6، ناظم آباد 159.1، پی اے ایف بیس مسرور پر 148.5، صدر 136، لانڈھی میں 121، پی اے ایف بیس مسرور پر 148.5، صدر 136، لانڈھی 121، اولڈ ایئرپورٹ 109.9، جناح ٹرمینل 104.2، سعدی ٹاؤن 101.7، یونیورسٹی روڈ 68.7، گلشن حدید 49 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے صوبائی حکومت نے شہر میں عام تعطیل کا اعلان کر رکھا ہے۔ تمام سرکاری اور نجی ادارے بند ہیں، تاہم بلدیات، صحت، واٹر بورڈ، پی ڈی ایم اے اور ریونیو کے دفاتر کھلے ہیں۔ 4 روز تک وقفے سے ہونے والی بارش کا پانی کنٹینرز، بسز اور کاروں کو کھلونوں کی طرح بہا لے گیا۔ بارش کے پانی سے موٹر سائیکلز اور گاڑیاں بند ہو گئیں، جبکہ گلیاں اور محلے تالاب میں تبدیل ہو گئے، جس کے باعث شہریوں کو گھروں کی چھتوں اور بالائی منزلوں پر پناہ لینا پڑی۔ موسلادھار بارش سے سرجانی ٹاؤن پھر ڈوب گیا، جبکہ کریمی چورنگی سے آنے والا ریلا یوسف گوٹ میں داخل ہو گیا۔ بسم اللہ ٹاؤن، سیکٹر 4B اور یوسف گوٹ بھی مکمل ڈوب گئے۔ گجر نالہ اوور فلو ہونے سے بفر زون سیکٹر 16 اور گلبرگ کے علاقے بھی پانی سے بھر گئے۔ ایف بی ایریا بلاک 5، ناگن چورنگی، سخی حسن چورنگی، حیدری اور نارتھ ناظم آباد بھی زیر آب آ گئے۔ کراچی کا رنگی نالہ بھر گیا، جبکہ گل بہار، اتحاد کالونی، کشمیری محلہ اور اطراف کی آبادی میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ کشمیری محلے میں 10 فٹ تک پانی جمع ہو گیا اور مکینوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ کئی خاندان گھروں کی بالائی منزلوں پر محصور ہو کر رہ گئے۔ بارشوں کے بعد نکاسی آب کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور اہم شاہراہوں سمیت متعدد علاقوں میں پانی جمع ہے۔ شہر کے انڈر پاسز سے بھی پانی نہیں نکالا جا سکا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ پانی بھر جانے کی وجہ سے ہوٹل مہران، گولی مار، ڈرگ روڈ، سب مرین، طارق روڈ، بحریہ ٹاؤن، سپر ہائی وے اور ہل پارک انڈر پاسز بند کر دیے گئے ہیں۔ کراچی کے شہریوں کا امتحان جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ 2 دن کی مسلسل بارش کے بعد شہر کے بیشتر علاقے تاحال پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بجلی کی بندش نے بھی شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بھی پوری طرح متاثر ہیں۔ کراچی کے شہری ہوشیار رہیں، ابھی بارش باقی ہے۔ بارش برسانے والا سسٹم اب بھی شہر میں موجود۔ آج بھی مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ شہر قائد میں بارش سے تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلسل بارشوں نے شہر کا برا حال کر دیا۔ کوئی سڑک، کوئی شاہراہ نہ بچی، ہر طرف پانی کی حکمرانی۔ سڑکوں پر گاڑیوں کے بعد محرم کی سیکورٹی کے لیے رکھے گئے ٹینکر تیرنے کے مناظر بھی شہریوں نے دیکھے۔ انتظامی نااہلی پوش علاقوں تک بھی پہنچی اور گھروں میں پانی داخل ہونے سے قیمتی سامان تباہ ہو گیا۔ شہری کس مشکل کا رونا روئیں، پیاروں کے گھر نہ پہنچنے پر پریشانی کا رونا روئیں، یا گھروں میں داخل پانی کو نکالنے کے جتن کریں، اپنی جان بچائیں یا گاڑیوں کو گھسیٹ کر محفوظ مقام تک پہنچائیں۔ گھر پہنچنے کے لیے گاڑی کا انتظام کریں یا کشتی کا۔ شہریوں کے لیے بارش کے پانی سے بچنے کی مشکل ہی کیا کم تھی کہ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ شہریوں نے رات بھی اندھیرے میں گزاری۔ شاہ فیصل کالونی، گرین ٹاؤن، شمسی سوسائٹی میں بجلی تاحال بحال نہ ہو سکی۔ ملیر، جعفر طیار، سعود آباد، کھوکھرا پار، ملیر ہاٹ کے علاقوں میں بھی بجلی بند ہے۔ بجلی کے بندش کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بھی بری طرح متاثر ہو گئی ہیں۔ موبائل فونز کی چارجنگ ختم۔ موبائل فون سروس متاثر ہونے سے شہریوں کو اپنے پیاروں سے رابطوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। गुज़िश्ता रोज होने वाली रिकॉर्ड तोड़ बारिश का पानी अभी भी कई इलाकों में जमा है, जो शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बना हुआ है। कई इलाकों में बिजली भी गायब है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर। आज बिल्कुल एक मरतबा फिर आज जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुलशन हदीद, मलीर और उससे मुलाहिका इलाकों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है मोतदिल बारिश का इम्कान है शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, ये गुलशन जमाल का इलाका है। यहाँ पर भी जो है बूंदाबांदी इस वक्त जो है वो शुरू हो गई है। और लेकिन असल बात यह है कि गुज़िश्ता रोज जो शदीद तरीन रिकॉर्ड तोड़ जो बारिश हुई थी, उसका पानी जो है अभी तक जो नशेबी इलाके हैं खास तौर पर और वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा सड़कें और गलियां भी जो है जो जहां पर जो है गड्ढे उनके अंदर पड़े हुए हैं, उनके अंदर जो है पानी खड़ा हुआ दिखाई देता है। पानी खड़ा रहने की वजह से तमाम जो अहम शाहराएं हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं कई मकामात से, जिसकी वजह से वहां से ट्रैफिक को गुजरने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। और काफी इलाके ऐसे हैं शहर के जहां पर लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया था, उनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है। और जो है हमारे इदारे हैं जो इसके मुतालिका इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही है। पूरे इस मानसून के दौरान जब भी बारिश आई है, लोग जो है इंतहाई मुश्किलात का शिकार रहे हैं, क्योंकि पानी जो है कई कई रोज तक, जब भी बारिश बरसती है कई कई रोज तक पानी खड़ा रहता है, कोई उसको निकालने वाला नहीं होता। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत दावे तो करती है लेकिन उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। वजीर आला सिंध भी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जो कि ज्यादा मुतासरा इलाके हैं, उनका दौरा भी किया है। लेकिन शहरियों का यह कहना है कि ये दौरे और ये इंतजामात पहले से किए जाने चाहिए जब मानसून की बारिशें स्टार्ट होती हैं। और मुतासिर होने के बाद जो है हुकाम जो है वो दौरे करते हैं। बिजली भी गायब है कराची के बेशतर इलाकों में। गुज़िश्ता रोज जो है बिजली गायब हो गई थी, कहीं तो बहाल कर दी गई, लेकिन अब भी ऐसे इलाके हैं जहां पर गुज़िश्ता रोज से अब तक जो है बिजली बहाल नहीं की गई। बिजली न होने की वजह से तमाम तर जो है मामूलात जिंदगी वो शदीद मुतासिर हैं। जी, तमाम तर मामलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, कराची से अपडेट कर रहे थे। कराची समेत मुल्क भर में जारी बारिशों का हालिया स्पेल शाम तक खत्म हो जाएगा, लेकिन बारिशों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। कल से पीर तक बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा, जिससे एक बार फिर बादल गरज चमक के साथ बरसेंगे। मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा जानते हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर खालिद मलिक से, जो इस वक्त हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी के साथ मौजूद हैं। कामरान, क्या कहना है डायरेक्टर महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो हालिया स्पेल जो था बारिशों का जिसने तबाही मचाई कराची में, वो ख़त्म होने को है और उसका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जोर टूट रहा है। तमाम महकमा मौसमियात की जानब से जो है वो नया अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इतवार और सोमवार के रोज जो है वो शहर कायद में शदीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। इसके साथ साथ जो मुल्क के दीगर इलाके हैं वहां पर जो बारिशों का सिलसिला जारी था वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका जोर भी टूटने को है। और आइंदा जो स्पेल आएगा बारिशों का, उसके हवाले से और कराची में जो सूरत हाल है, इस हवाले से हमारे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर खालिद मलिक मौजूद हैं। इनसे मजीद जान लेते हैं कि कराची में ये जो आने वाला स्पेल है और हालिया स्पेल जो खत्म हो रहा है, इसके बाद जो स्पेल आएगा उसके कितने इम्कानात हैं कि वो कराची में जो है वो दोबारा से खुदा न खास्ता ऐसी तबाही मचाएगा जो गुज़िश्ता 2 से 3 रोज में देखने को मिली है। डॉक्टर खालिद मलिक साहब बताइएगा कि कराची में आज तो जो है वो ये स्पेल आपके मुताबिक ये खत्म हो चुका है और आने वाले दिनों में जो है वो दोबारा से फिर अलर्ट जारी कर नहीं, अभी हम ये नहीं कह रहे कि ये स्पेल खत्म हुआ है। अभी ये स्पेल जो है वो ऑलमोस्ट हम ये कह रहे थे कि काफ़ी हद तक डिसिपेट हो चुका है, लेकिन आज फिर इसमें कुछ विंड्स जो हैं वो अरेबियन सी की तरफ से उसमें मॉइस्चर की शिद्दत आ रही है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज इवनिंग तक जो है कराची में के कुछ एरियाज में मॉडरेट रेन होने के चांसेस हैं। ये खुदा न खास्ता जिस तरह से अब बारिश हुई है 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई शराय फैसल पर कराची में, जो हालिया बारिशों में सबसे ज्यादा बारिश है। तो इस तरह की खुदा न खास्ता कोई दोबारा से सूरत हाल जो है वो कराची में इतवार और सोमवार के रोज देख रहे हैं। देखिए, अभी जो पोजीशन लग रही है या जो आने वाला सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा हूँ संडे और मंडे को है, उसमें इतनी ज्यादा शिद्दत हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन वो कुछ एरियाज में शावर दे सकता है। ये सर कुछ माहिरीन के मुताबिक कराची में जो समंदर है उसकी वजह से, समंदर के हवाओं में जो नमी है उसकी वजह से जो है ये बादलों का सिस्टम जो है वो मजीद मजबूत होता जा रहा है। मसला ये है कि कोई भी जो सिटी है या कोई भी आबादी जो है वो समुंदर के पास होती है और अगर वहाँ से जो आपकी विंड्स हैं उसकी डायरेक्शन समुंदर से खुश्की की तरफ आ रही हो तो वो मॉइस्चर वहाँ से पिक कर लेती हैं। जब वो पिक कर लेती हैं और वहाँ पे सिस्टम मौजूद होता है तो वो उससे जो है ना वो सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो खुदा न खास्ता कोई दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी है? अभी
فی الحال جو پوزیشن ہے وہ ہمارے پاس دریائے چناب اور دریائے جہلم کی جو پوزیشن ہے اس میں ہم میڈیم ٹو ہائی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو آؤٹ فلو ہے وہ مور دین 200,000 کیوسکس ہے۔ اگر یہ اس سے زیادہ بڑھتا ہے تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ ورس نہیں ہوگی ملک کے دیگر علاقوں میں، اور دریاؤں میں جو صورتحال ہے وہ دریائے چناب اور جہلم کی صورتحال سے آگاہ کیا ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد ملک نے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی جو ہے وہاں پہ حالیہ سسٹم جو ہے وہ آج شام تک کم ہو جائے گا۔ کل کا دن جو ہے وہ کراچی میں بارشوں کی کسی بھی طرح کی پیشن گوئی نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں جو سندھ کے دیگر علاقے ہیں وہاں پہ جو بارشوں کی پیشن گوئی ہے، اتوار اور سوموار کے روز جو ہے وہ دوبارہ سے کراچی میں ابر رحمت برسے گی۔ جی ویلکم بیک۔ حیدرآباد میں بارشوں کے بعد لطیف آباد کے علاقے مہر علی کالونی میں بارش کا پانی کئی فٹ تک جمع ہونے سے لوگ چھتوں پر محصور ہو گئے ہیں۔ امدادی سرگرمیوں کے لیے پاک فوج پہنچ کر لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے نکالنے میں مصروف ہے۔ رپورٹ کریں گے جہاں علی۔ حیدرآباد کے تلکے لطیف آباد کا نشیبی علاقہ مہر علی کالونی میں حالیہ بارشوں سے کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے۔ گھروں میں 4 سے 5 فٹ پانی بھرنے کی وجہ سے علاقہ مکین گھروں کی چھتوں پر محصور ہو کر رہ گئے اور گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، جبکہ پاک فوج نے امدادی سرگرمیاں سنبھال لی ہیں۔ پانی میں پھنسے بچوں، بزرگوں اور عورتوں کو کشتیوں کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے موٹریں لگا کر نکاسی آب کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی حکومتی عہدیدار داد رسی کو نہیں آیا۔ بارش ہوئی ہے اور جو یعنی کہ 2 دن کے بعد جو ہے پاک فوج آئی ہے، آرمی آئی ہے، انہوں نے پاک فوج نے جو ہے ہمارے کو نکالا ہے، انہوں نے مدد کری ہے۔ سارے گھر ڈوبے پڑے ہوئے ہیں، دوسری بات یہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی معاشرہ نہیں ہے، لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں، ماں بیٹیاں بیچارے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، سر پکڑ کے کوئی امداد نہیں ہے۔ یہاں پہ صبح آرمی آئی ہے، ان لوگوں نے ماشاءاللہ انہوں نے ناشتہ دیا ہے تو کچھ پیٹ بھرا ہے لوگوں کا۔ نہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، نہ ہم لوگ باہر نکل سکتے ہیں، نہ کچھ۔ آج یہ لوگ آئے ہیں تو ہم لوگ باہر نکلیں، کچھ بچوں کی دوائی وغیرہ، کچھ کھانے پینے کی چیز لے سکتے ہیں۔ غریب آدمی مر رہے ہیں، ووٹ تو لینے کے لیے سارے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہم ووٹ دے دیتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ پاک فوج ہے جو ہماری مدد کر رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے ادھر ہمارے پاس۔ متاثرین نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ کی طرح پاک فوج ہی اس مشکل کی گھڑی میں مدد کو پہنچی ہے۔ محکمہ HDA اور منتخب نمائندے سرزمین سے غائب نظر آتے ہیں۔ کیمرہ مین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں علی، بیورو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ لاہور میں 1 گھنٹے تک ہونے والی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ انتظامیہ کے لیے پانی کا نکاس چیلنج بن گیا۔ اہم شاہراہیں ڈوب گئیں، نشیبی علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے اجلال حیدر۔ لاہور میں 62 ملی میٹر تک ہونے والی بارش نے واسا کے داووں کا پول کھول دیا۔ اہم سڑکیں اور نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ چوبرجی کے علاقے کی گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ایمپریس روڈ، حاجی کیمپ، بوڑ والا چوک اور ریلوے اسٹیشن پر بھی بارش کے پانی نے ڈیرے ڈال لیے، جبکہ چوبرجی کے اطراف پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت مشکلات ہیں یہاں چوبرجی کے ایریے میں، خاص طور پہ جب بارش ہوتی ہے تو ایک تو بارش کا پانی بہت اکٹھا ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نالے کا جو پانی ہے وہ اس کا کوئی خاص نظام نہیں ہے، اس کے کوئی خاص کراسنگ نہیں بنائی گئی یہاں پر، جس کی وجہ سے جو ہے نالے کا پانی بھی سارا سڑک پر آ جاتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ بارش کے پانی کی بر وقت نکاسی نہ ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ تاجر برادری بھی پانی جمع رہنے سے خاصی پریشان ہے۔ پہلے یہاں پانی نہیں کھڑا ہوتا تھا، فوراً گاڑی آ جاتی تھی، لگ جاتی تھی، پانی نکل جاتا تھا، لیکن جب سے یہ حکومت چینج ہوئی ہے اس کے بعد یہاں کا کوئی حال نہیں ہے، بلکہ پورے لاہور کا ہی کوئی حال نہیں ہے۔ ہر جگہ پانی ہے، ہر جگہ، ہر نالا بند ہے۔ بہت اچھی تبدیلی آئی، وزیر اعلیٰ جو ہے نا ہمارے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، مکمل طور پہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے، اور ایسا کام کر رہے ہیں جس سے سب طرف نقصان ہی نقصان ہے، اور عوام پریشان ہے، برا حال ہے، کیا حال ہے سب دیکھیں، یہ دیکھیں کوئی کاروبار ہی نہیں چل رہے یہاں پر۔ یہ اگر پانی کھڑا ہوئے تو کہاں سے آئے گا ہمارے پاس۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت دعووں کے بجائے اگر مونسون سے قبل عملی اقدامات کرتی تو شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ کیمرہ مین مبشر رزاق کے ساتھ ہلال حیدر، سچ نیوز، لاہور۔ لاہور کے علاقے سگیا افضال کالونی میں مکان کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے کے باعث 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن نے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں زین نقوی۔
लाहौर में बारिश के बाइस सगियां अफजाल कॉलोनी बंद रोड में खस्ता मकान की छत गिर गई। मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक मकान की छत बज़ाहिर कमजोर स्ट्रक्चर की वजह से गिरी है। जाँ बहक होने वालों में से एक का ताल्लुक कर्क जबकि 3 अफराद का ताल्लुक बुनीर से था। मलबा उठाने के लिए रेस्क्यू 1122 की स्पेशल अर्बन सर्च टीम ने 20 एहलकारों और रेस्क्यू की 9 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मलबा उठाने के लिए रेस्क्यू की जानिब से हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद घुमन ने भी इलाके का दौरा किया और रेस्क्यू के मलबा उठाने और ऑपरेशन का जायजा लिया। जहाँ बहक होने वालों में 24 साला अजमत, 40 साला खलील, 26 साला आसिफ शामिल है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जैन नकवी। सिंध के बाद पंजाब में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 11 जिंदगियों के चिराग गुल हो चुके। दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। मूसलाधार बारिशों से तबाही। लाहौर में बंद रोड पर मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 24 साला अजमत और 40 साला खलील के नाम से हुई है। वजीराबाद के नवाही कस्बा सोदरा में मूसलाधार बारिश के बायस मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक जबकि मां जख्मी हो गई। कसूर के इलाके कोट राधाकृष्ण में छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह 1,08,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुमकिन सैलाब के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मलिका बस्तियों को फौरी तौर पर हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर 4 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। भारत से आने वाला नाला एक और डैक भी बिफर गए। डस्का के मुतादिद देहातों में तबाही मचा दी गई। नाला एक में शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर लगी फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद इकबाल। भारत की जानिब से आने वाले और डस्का की हदूद से गुजरने वाले नाला एक और डैक बिफर गए। नाला एक में कोटली मरला के मकाम पर शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से मुल्का इलाकों की सैकड़ों एराजी ज़ेरे आब आ गईं। कोटली मरला से गंजियां वाली की तरफ हर तरफ पानी ही पानी हो गया। राब्ता सड़क भी ज़ेरे आब आ चुकी, जिससे मुतअद्दिद देहातों का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। और यहाँ बेशुमार तुगयानी आई हुई है। 2 जगह से बंद टूट गया है एक का, और साथ वाले गाँव तकरीबन गंजियां वाली, काजीचक, दुलची के, ये सब ज़ेरे आब आ चुके हैं। हजारों एकड़ पे खड़ी फसलें धान की तबाह हो चुकी हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा कोई मुदाफा करे। सैलाबी पानी से धान, सब्जी, चारा की फसलें मुतासिर हुई हैं। हेड मुराला फ्लड कंट्रोल के मुताबिक नाला एक में इस वक्त 9,826 क्यूसिक का रेला और नाला डैक में 625 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि दरिया चनाब 3,30,884 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। उधर मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में वक्फे वक्फे से बारिश रहने का इम्कान है। इंतजामिया की जानिब से फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। सियालकोट नाला पलखू में ऊंचे दर्जे का सैलाब पुल टूटने से बर्थ गांव का कैंट और शहर से राबता मुनक़ता हो गया। नाले का सैलाबी पानी गांव और मदीना कॉलोनी में दाखिल हो गया है। मजीद जानेंगे अजीम शहजाद से। जी अजीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, नाला पलखू में पावेनी जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब जो देखा किया जा रहा है। बर्फ के मुकाम पर पलखू का जो कैंट और गाँव है, बर्फ को मिलाने वाला जो पुल है वो तो जो है सैलाबी रेले से रह गया है, जिसकी फुटेज जो है वो साइंसदानों ने हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस एक कदर शदीद जो है वो सैलाब जो है गुजर रहा है, जिससे जो है बर्फ वो डेढ़ जो है गाँव उसके अंदर पानी जो है दाल हो गया है और गली मोहल्लों में 3 से 4 फुट पानी जो है इस वक्त रहा है। नाले का सैलाबी बर्फ और कॉलोनी में दाल हो गया है। गली घरों के अंदर जो है पानी का जो मैं आपको पता चलूं कि नाला पलखू की जो गुंजाइश है वो 3,000 क्यूसेक है, जो इस वक्त रेला गुजर रहा है वो 4,000 क्यूसेक है। जी बहुत शुक्रिया अजीम शहजाद, आप अपडेट कर रहे थे। और अब जिक्र फौज हुसैनी के अलमदार का। आज हजरत अबुल फजल अब्बास की याद में जुलूस निकाले जा रहे हैं। 8 मुहर्रम मंसूब है हजरत अली अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करबला में अपना अलमदार बनाया। आज
जगह जगह इसी अलमदार हुसैनी की याद मनाई जा रही है। अज़ादार 8 मुहर्रम को हजरत अब्बास से मंसूब करते हैं। शुजाअत ही की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का सालार और अलमदार बनाया। उम्मुल बनीन के लाल हजरत अबुल फजल अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं। वजह इतने कि अहले मदीना आपको कमरे बनी हाशिम कहते। रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको जंग की इजाजत न दी और बीबी सकीना के लिए फकत पानी लाने को कहा। तीर लगा मश्के सकीना पे जा गया होठों पे दम अब्बास का। मश्के सकीना की हिफाजत करते हुए करबला में नहरे फुरात पर हजरत अब्बास अलमदार के दोनों बाजू शहीद हुए। अरे जब अलमदार न रहा तो अब ये आलम सरनिगू हो रहा है। दोनों आलम को लिया, उस पहले आलम को जिससे लहू टपक रहा था दूसरे आलम के फरहेरे में लपेटा और उसके बाद खैमे में आए बीबियों अब्बास शहीद हो गए। मश्के सकीना छिद गया और खैमों में अलम आया लेकिन अलमदार ना आया। आप अलैहिस्सलाम की शहादत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यूं नोहा किया, अब्बास आज मेरी कमर टूट गई। टूटी जो कमर शेख की बस दो ही तो सदमे थे। एक फिक्र थी ज़ैनब की और दूसरा गम तेरा। अज़ादार यही अहद करते हैं कि जब तक दिल सीने में है आपका गम नहीं जाएगा। हजरत अब्बास के मशहूर अलकाब सक्काए सकीना, अलमदार करबला, बाबुल हवाइज और कमरे बनी हाशिम हैं। हजरत अब्बास हजरत अली की दूसरी जोजा बीबी उम्मुल बनीन से हैं। करबला में आपके 3 भाई और 4 फर्जंद भी शहीद हुए। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने आप अलैहिस्सलाम का रोज़ा आज भी अहले वफा का किबला कहलाता है। देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। वफा को भी फौज हुसैनी के अलमदार पर नाज है। यही वजह है कि इमाम बारगाहों और घरों पर हजरत अब्बास की वफा का परचम लहराया जाता है। दिल सीने में जब तक है भूलेगा ना गम तेरा। देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। फौज हुसैनी के सिपा सलार हजरत अब्बास अलमदार की याद में शहर शहर नगर नगर जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। बनीन के लाल और सकाए सकीना से मंसूब 8 मुहर्रम की आज़ादारी सैयदुश्शुहदा में खास अहमियत है। सोगवारान हुसैनी वफा के पैकर को खुसूसी सलाम पेश करते हैं। जिंदगी भर भाई इमाम हुसैन को आका कहकर पुकारने वाले अव्वल फजल की याद में घर घर से अलम उठाए जा रहे हैं। कराची में नश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर हो। इसी तरह इस्लामाबाद में जामतुल मुर्तजा G94 से बरामद होने वाला जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रमा दमा है। अज़ादारान सकीना नौखानी करते हुए बारगाह इमाम सादिक G92 पहुंचेंगे। जगह जगह याद हजरत अब्बास अलमदार में जुलूस और नजर न्याज का खुसूसी इंतजाम किया गया है। आज पूरे दिन खुसूसी तौर पर दस्तरखान अलमदार हुसैनी का एहतमाम किया जाता है। इस्लामाबाद कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर ज़िशान नकवी ने मरकजी जुलूस के रूट का दौरा किया और CDA की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। इस्लामाबाद में जामतुल मुर्तजा G94 से बरामद होने वाला जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। अज़ादाराने सकाए सकीना नुहाखानी करते हुए बारगाह इमाम सादिक G92 पहुंचेंगे। जुलूस के तमाम रास्तों CDA की जानिब से इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़िशान नकवी ने रूट का दौरा किया। इस दौरान CDA और जिलाई इंतजामिया के अफसरान की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग दी गई। ज़िशान नकवी ने इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत दी कि जुलूस के रास्तों पर इंतजामिया के अहलकार मौजूद रहने चाहिए ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके।
सैयदुश्शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की याद में मुल्क के कोने कोने में मजालिस अज़ा जारी हैं। जुलूस हाय अज़ा में मजलूम करबला को पुरसा पेश किया जा रहा है। मुल्क तूल अर्ज में सकाए सकीना और अलमदार करबला हजरत अब्बास का, जिन्होंने रहती दुनिया तक वफादारी की नई मिसाल कायम कर दी, बाजू कटवा दिए, मश्क छिद गई, लेकिन अलम की इस तरह हिफाजत की कि आज तक ये अलम सरबुलंद है। टोबा टेक सिंह की तहसील गुजरा में 8 मुहर्रम उल हराम की मजलिस मुनाकिद हुई। अल्लामा मूसा हैदर रिजवी ने फजाइल और मसाइब अलमदार अब्बास बयान किए। उनका कहना था कि हजरत अब्बास को जंग की इजाजत न मिली। मौला अब्बास की शहादत पर मौला हुसैन ने कहा कि मेरी कमर टूट गई है। इस मौके पर अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद ने मातम भी किया। बावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ में अलम पाक का कदीमी और मरकजी जुलूस दरबार हजरत सैयद मखदूम जहानिया से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह गुलाम अब्बास में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हजरत अब्बास की शहादत पर पुरसा पेश किया गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह गोडकी के इलाके खानपुर महर में भी 8 मुहर्रम उल हराम के हवाले से मजालिस अज़ादारी और मातम का सिलसिला जारी है। खानपुर और गिरदोनवा के मुख्तलिफ इलाकों में शोहदाए करबला और प्यासे बच्चों की याद में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 20 से ज्यादा सबीलें लगाई गयी। लोधरा की तहसील दुनियापुर में इमाम बार गाँव में मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिनमें उलमा कराम और जाकिरीन ने मजालिस अज़ा के शुरका से खिताब करते हुए फजाइल मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रोशनी डाली और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला के मसाइब बयान किए। सैयदुश्शहदा और उनके जानिसारों को पुरसा पेश करने के लिए मातमी जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। जैकबाबाद के इलाके ठल में जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी से बरामद हुआ, जो फारूक आजम चौक, रहबर चौक, रियाज चौक से होता हुआ इमाम बारगाह असगरिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के शुरका इमाम मजलूम को पुरसा पेश करते रहे। करबला के प्यासों की याद में सबीलों का भी एहतमाम किया गया था। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में भी मातमी जुलूस बरामद किए गए। शाहकोट में अबुल खैर बाबा 9 लाख हजारी से मुलक्का इमाम बारगाह से 8 मुहर्रम का मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस के शुरका इमाम मजलूम को पुरसा पेश करते रहे। करबला के प्यासों की याद में सबीलों का भी एहतमाम किया गया। बिहाड़ी में 8 मुहर्रम उल हराम को हजरत गाजी अब्बास अलमदार का जुलूस F ब्लॉक इमाम बारगाह कसर अबू तालिब से बरामद हुआ। जुलूस रेल बाजार से होता हुआ F ब्लॉक इमाम बारगाह कसर अबू तालिब पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादार इमाम आली मकाम को पुरसा पेश करते रहे। नूरपुर थल में 8 मुहर्रम उल हराम के 14 जुलूस कश्मीर चौक से बरामद हुए। हाला बिटशाह में हजारों क़ीदतमंदों ने आग पर मातम किया और करबला के मैदान में दी जाने वाली इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और साथियों की कुर्बानी को याद करते हुए पुरसा दिया। हैदराबाद में मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में इमाम बारगाह अंजुमन सफीना हुसैनी जमातों का मातमी जुलूस टंडमीर महमूद से बरामद किया गया। रिपोर्ट करेंगे जहांजेब अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में इमाम बारगाह अंजुमन सफीना हुसैनी जमातियों का मातमी जुलूस टंडोमीर महमूद से बरामद किया गया। मातमी जुलूस में हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम पाक, मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम के 2 झूले और जुलजना बरामद किए गए। मातमी जुलूस में अज़ादारान सैयद शोहदा ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए शोहदाए करबला की याद को ताज़ा करते हुए या हुसैन की सदाएं बुलंद करते रहे। मातमी जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ 26 घंटे का सफर तय करके वापस अपनी मंजिल इमाम बारगाह अंजुमन सफीना हुसैनी पर इख्तिताम पजीर होगा। मातमी जुलूस में मुख्तलिफ मकामात पर पानी और शरबत की सबीलें और नजर न्याज का एहतमाम भी किया गया है। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। जामिया इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियांवाली में अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जारी है। मौलाना सैयद इंतसार मेहदी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत और मकसद क़याम हुसैनी बयान किया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद अब्बास। जामिया इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियांवाली में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जारी है। यकम मुहर्रम से अशरा मुहर्रम उल हराम का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रिंसिपल जामिया इमाम खुमैनी मौलाना सैयद इंतसार मादी नकवी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत, इनकी कुर्बानियों और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मजलिस अज़ा से खिताब फरमा रहे हैं। हुसैन वो हस्ती हैं कि जो हिदायत का चिराग हैं। अगर हुसैन के पीछे चलोगे तो हिदायत पाओगे, हिदायत पाओगे तो जन्नत में जा सकोगे। अगर हिदायत नहीं पाओगे, हुसैन को नहीं मानोगे, हुसैन की पैरवी नहीं करोगे, हक को बातिल को नहीं पहचानोगे। जिसकी खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, कुर्बानी किस लिए दी? हक को बताने के लिए कि हक क्या है और बातिल को मिटाने के लिए कि बातिल क्या है।
अगर हक को नहीं पहचानोगे तो जन्नत में कैसे जा सकते हो, अगर बातिल की पैरवी करोगे तो जन्नत में कैसे जा सकते हो। सब कुछ कुर्बान कर दिया किस लिए? हक के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, इस इस्लाम को बचाने के लिए, मार्फत खुदा के लिए, मार्फत तौहीद के लिए, मार्फत पैगंबर के लिए। 8 मुहर्रम हराम को जामे इमाम खुमैनी में सालाना नवाखानी और मातमदारी का एहतमाम किया जाता है, जिसमें अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवाखानियों सीना को भी करते हुए मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। कैमरामैन नियाज़ शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। रावलपिंडी में 8 मुहर्रम हराम का जुलूस इमाम बारगाह कस्र ज़ैनब से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। जी सुहेल। बिल्कुल, आज मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस जो है वो ग्रोटी स्टॉप कस्र ज़ैनब इमाम बारगाह से बरामद हुआ है। जुलूस अपने रवायती रास्तों की तरफ गामजन है। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम देखने में आए, जबकि जुलूस में जुलजना और के साथ साथ जो है वो अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बरामद किया गया है। जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों की तरफ गामजन है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जो है वो पुरसा पेश किया जा रहा है, जबकि मसाइब करबला भी बयान किए जा रहे हैं। जबकि मजालिस का सिलसिला जो है वो इमाम बारगाह में जारी है। ये छोटे जुलूस है वो मुख्तलिफ गलियों से और जो मुख्तलिफ घरों से बरामद होंगे, जो कि एक बड़े जुलूस की शक्ल इख्तियार करेंगे और कलमा चौक पर नमाज ज़ोरैन अदा की जाएगी। उसके बाद करबला की याद में जो है 72 शोहदाए करबला की याद में 72 ताबूत जो है वो बरामद किए जाएंगे और एक बड़ा जुलूस जो है वो वहाँ से जो है बरामद किया जाएगा। उसके बाद जुलूस अपने मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ कस्र ज़ैनब इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस पर जो है जंजीर ज़नी भी की जा रही है, इसके साथ साथ नवाखानी भी की जा रही है। जुलूस के मुकर्रर रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। बच्चे, बूढ़े, बड़े जो है अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है बड़ी तादाद में शरीक हैं। जुलूस के मौके पर जो है वो सिक्योरिटी सख्त तरीन इंतजामात और गलियाँ जो है वो जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर आने वाली गलियों के वो खारदार तारे लगाकर सील किया गया। सुहेल राजा आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दीन इस्लाम को बचाने और उम्मत की बेदारी के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। करबला की तहरीक के पैगाम, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के मकासद और यजीद के मजालिम को करबला की असीर खवातीन ने दुनिया पर आश्कार किया। तारीख इस्लाम का एक अहम तरीन वाक़या जिसने नाम निहाद इस्लामी माशरों को हकीकत इस्लाम से रोशनास कराया और तारीख इस्लाम को हयात अबदी के रंग में रंग दिया, वो सैयद शुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम है। ये क़याम उन मर्दों और ख़वातीन दोनों की फिदाकारियों और जानिसारों पर मुश्तमिल है जो पूरी दुनिया के मुसलमान मर्दो जन बल्कि हर इंसान के लिए नमूना अमल और मशअल राह हैं। करबला के वाक़यात को जिंदा और जावेद बनाने में हजरत ज़ैनब, हजरत कुलसूम, हजरत सकीना बिनतुल हुसैन अलैहिस्सलाम, असीरान अहले बैत और करबला की दीगर शुदा की बीवियों और माओं का अहम किरदार रहा है। किसी भी तहरीक का पैगाम अवाम तक पहुँचाना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। करबला की तहरीक के पैगाम को अवाम तक करबला की असीर खवातीन ने पहुँचाया है। जनाब ज़ैनब के बेमिसाल किरदार, कुर्बानियों और खुतबों से तारीख करबला रोशन नजर आती है। करबला की उन मिसाली खवातीन ने मुलूकियत की परवरदा कुव्वतों के मुकाबल अपने मासूम बच्चों को भूख और प्यास की शिद्दत से बिलखता हुआ देखना गवारा किया, यहाँ तक कि अपने सुहागों को भी राह खुदा में कुर्बान होते देखा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कश्ती इंसानियत को डूबने नहीं दिया। वाक़या करबला को बेनजीर व लासानी बनाने में खवातीन करबला के बेमिसल इसार से इनकार नहीं किया जा सकता। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नसारो मुजाहिदीन को उनकी माओं ने हिम्मत और हौसला दिया कि तुमसे ज्यादा कीमती जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद हैं। ऐसा न हो कि तुम्हारे होते हुए दुश्मन उनको नुकसान पहुंचा दे। अगर ऐसा हुआ तो हम रोजे मैशर सईदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या मुंह दिखाएंगे। ये उन अजीम माओं की हिम्मत थी कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए एक ने अपनी उम्र भर की कमाई जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अजीम मिशन पर कुर्बान किया, तो जनाब रुबाब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने 6 माह के नन्हे शीर ख्वार को इमाम का मुजाहिद बनाकर पेश किया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं जिनके खुतबों से करबला की तहरीक को ता क़यामत इसी शदीद जज्बे से याद रखा जाएगा। हजरत ज़ैनब कुव्वत बर्दाश्त और सब्र के आला तरीन दर्जे पर फाइज थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपकी 3 अहम जिम्मेदारियों का आगाज हुआ था जिनको आपने कमाल कामयाबी के साथ निभाया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हजरत सज्जाद की तीमारदारी और दुश्मन से उनकी हिफाजत, दूसरी जिम्मेदारी उन औरतों और बच्चों की हिफाजत जो बेवा हो चुकी थी और बच्चे यतीम, तीसरी जिम्मेदारी करबला के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना था। दम तोड़ती इंसानियत को
जिंदा करने का जो इरादा हजरत इमाम हुसैन घर से लेकर निकले थे, उसको अंजाम तक किरदार और गुफ्तार के जरिए ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पहुँचाया। इन्हीं की सरबराही में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले हरम ने कूफा और शाम की गली कूचे में अपने खुतबात के जरिए यजीदियत के जुल्म का पर्दा चाक किया और रहती दुनिया तक होने वाली किसी भी साजिश को बर वक्त बेनकाब कर दिया। वाक़या करबला का एक और अहम किरदार अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की बेटी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिन्होंने दौरान असीरी कूफा और शाम के बाजारों में खुतबे दिए। उन्होंने अपने खुतबों में जहां कूफियों और शामियों की इमाम हुसैन से बेवफाई की मजम्मत की, वहीं हुर्मे रसूल की तरफ निगाह करने से शिद्दत से मना भी किया। आप कूफा में एक खुतबे के दौरान फरमाती हैं, ऐ कूफे वालों, क्या तुम्हें खुदा और रसूल से शर्म नहीं आती कि तुम हुर्मे रसूल की तरफ निगाह कर रहे हो। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।